Hello everyone in the answer Sari. Today we are going to look the questions of the previous year regarding the emergency part of the Indian Constitution, which we covered in the last two videos. We mentioned about everything regarding the emergency, which is mentioned in part 13 of the Indian Constitution, starting from the Article 352 to 360. We studied what are the various provisions in the Indian Constitution as regarding the proclamation of the emergency, revocation of the emergency, different types of emergency, different sort of impacts on the legislature, executive, administrative authorities during the different sort of emergency. So today we are going to see the questions regarding the emergency, especially of the prelims exam. So we have the question number one. Which of the following are the exclusive powers of the Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence against the Council of Ministers, to impeach the President of India. So only second statement is correct पहले because वाला Rajya Sabha और पहले दोनों चाहिए। पहले वाला डिक्लेरेशन इमरजेंसी के लिए, और इमरजेंसी हटाना है तो लोकसभा चाहिए काफी। तो आपका क्या मतलब पहले का आप सही बता रहे हो। नहीं, पहले नहीं होगा। रेटिफाई थर्ड करना। भी नहीं होगा। हाँ, थर्ड भी नहीं हो। इम्पीच के दोनों कर सकते। With reference to constitution, prohibition, limitation, provision contained in ordinary laws cannot act as a prohibition, limitation on the constitutional powers under Article 142. It would mean which of the following. The decisions taken by the Election Commission while discharging duty cannot be challenged in any court of law. Now this is completely wrong. Why so? Because 142 अगर हम जानते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्किम थ्रू भी किया तो हमें पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकती कि कोर्ट ऑफ लॉ का उस पर चैलेंज नहीं, जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं आप छीन सकते कोर्ट से। So B answer, Supreme Court is not constrained in the exercise of its powers by law made by the Parliament. यानी अंडर आर्टिकल 142 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर आप प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते हो, लिमिटेशन नहीं लगा सकते हो एक लॉ के बिहाफ पर, बल्कि वो लॉ जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है when it can declare the particular ordinary law as a constitutional void or null and void. If the president exercise his power as provided under Article 356, that is president rule, constitutional rule, and constitutional emergency. But when we talk about the exact term which is mentioned in the constitution, that is the rule of president of India. So इसमें क्या होता है? Constitution in respect of particular state, then the assembly of state is automatically dissolved. Number two, the power of state legislature shall be exercisable by or under the authority of the parliament. Article 19 is suspended in that state. The president can make laws relating to that state. तो उसी का आप मुझे बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप? इसमें ऑटोमेटिकली द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। हाँ, मैं भी बी लगाऊंगी। ए में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है। किसमें मैं बी लगाऊंगा इसमें। मैं सेकंड बी। बी, the power of legislature of state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 356 के अंदर देखते हैं तो ये जो बी प्रोविजन है 352 के अंदर मेंशन है। 356 के अंदर ऐसा मेंशन है कि द प्रेसिडेंट is empowered to deliver the law making power to the state to the parliament. So consider the following statement. The प्रवेश, proclamation of मेरे को the एक क्वेश्चन है। जो ये स्टेटमेंट नंबर ए है, इसमें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व लिखा है, तो मतलब डिसॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? जब स्टेट असेंबली डिसॉल्व तो होती है। प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में हमने कल भी बात की थी कि नहीं, नेशनल नेशनल इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं, प्रेसिडेंट रूल में स्टेट असेंबली डिसॉल्व तो होती है। प्रेसिडेंट रूल की बात हो नहीं रही है, होती, बट यहाँ पे नहीं होती, वही बोल रहा हूँ, नहीं होती है। प्रेसिडेंट स्टेट रूल के असेंबली अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। नहीं, प्रेसिडेंट रूल के अंदर आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। आप उसको बस ये बोल सकते हो कि अभी आप सेशन भी ले रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसा होगा।
नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो है आप डिसॉल्व कर देते हो ऑटोमेटिकली, प्रेसिडेंट रूल के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है। आई थिंक शायद आप उल्टा बोल रहे हो। आप रेक्टिफाई कर दो, मुझे बताओ। नहीं, चेक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, शायद आप ऑपोजिट बोल रहे हो इस केस में। आई एम चेक। स्पीकिंग not according to me, as per the constitutional precedents, जिसमें कि under president rule, I'm again reiterating the same fact, in the president rule, which is constitutional emergency under Article 356, the state assembly is not automatically dissolved. The state assembly coexists, but the state legislature, the state assembly, and the state government also remains in the power, and whatever law parliament makes, they have to adhere to those laws. That is the meaning of president rule. But in the national emergency under Article 352, the state assembly is automatically dissolved. Why so? Because the constitutional machinery is disrupted. Neither the executive government of state is adhering to the mandatory direction given by the center under Article 355. तो And यहाँ पर बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट रूल में स्टेट असेंबली कभी भी किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं हो सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, आप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली नहीं होती। हम्म। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए डिसॉल्व करने से पहले। So now this question, proclamation of emergency is only mentioned but not explicitly defined in the Constitution. A proclamation declaring a financial emergency has to be approved by both the houses within 1 month, galat, 2 months. Resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house only by a simple majority. Can be passed by either house only by, yes, simple majority चाहिए होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर, और दोनों हाउसेस की सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ओनली मेंशन्ड but not explicitly defined in the constitution. Now this becomes, I think it is mentioned explicitly, so देखते हैं, only third होना चाहिए मेरे, 2 and 3. नोट गलत है ना, पहला वाला डिफाइन नहीं है, डिफाइन है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिया हुआ है ना। नहीं, ये दूसरे वाला तो गारंटीड गलत हो, आपको 2 महीने के अंदर करनी होती है। आई कैन शेयर द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑन द ग्रुप, आई डू दैट। सेकंड इज कंप्लीटली रॉन्ग, 2 months इज इट इज रिटन, yesterday भी कवर किया था। Then the proclamation of national emergency is applicable to the entire country and not to any particular part of it. ये भी गलत है, किसी पार्ट में भी हो सकता है। The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Yes, only 2. Which of the following amendment act made provision for judicial review against the presidential proclamation imposing president rule under Article 356, 44th, 1978, Morarji Desai? To date, how many times financial emergency? Never. कौन सी मैच नहीं कर रही है? 360, ऑल नहीं होता है कभी भी। सस्पेंशन ऑफ ऑल, तो इसके अंदर आर्टिकल 19 आएगा। सस्पेंशन ऑफ ऑल होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल 359 के अंदर होता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो उसमें लिखा हुआ है ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20-21। इमरजेंसी प्रोविजन डिराइव फ्रॉम, बताओ ओशिका। जर्मनी है। जर्मनी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, the resolution approving the declaration of financial emergency should be passed by a special majority of either house. Simple majority है, there is no maximum period. Yes, सही बात है। Repeated parliamentary approval not required, 2 and 3. नहीं चाहिए ना, Repeated parliamentary approval is not required, ये भी लिखा हुआ है, कल ही किया। There is no maximum period, ये भी लिखा हुआ है, कल ही किया। I will again specify on the group. नोट करेक्ट पूछा है औशिक, यानी मेरे जो बोल रहा हूँ वो सही है, सिर्फ पहली गलत है। मैं सिंपल मेजॉरिटी से पहला। कितने सालों के लिए आप कंटिन्यू रख सकते हो, अप्रूवल की भी जरूरत नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट
introduced a new provision to put a restraint on the power of the parliament to extend a proclamation of president rule beyond 1 year. So 44. हाँ Which part of Indian Constitution deal with emergency? Part 13. Article 358 is true with respect to 6 fundamental rights under Article 19 are suspended only when the national emergency is declared on the ground of war and armed rebellion. जहाँ पर armed प्रवीण rebellion तुमने नहीं अभी आएगा, बोला पार्ट 13 की पार्ट 18? मानसी ऑप्शन part ए 13, करेक्ट है ना? 13 18 होगा ना? आप चेक कर लो. पार्ट ए क्या है? 13 है, 13 का 18 है, होता है ये. X is 10, V is 5 plus 3, 18th part. आपने कर लिया चेक? नहीं, पार्ट 18 ही है मेरे हिसाब से. 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है. हाँ ठीक है, part 18. Sorry from my side. Which of the following is true with respect to Article 358 of Indian Constitution? The 6 fundamental rights under Article 19 are suspended only when the emergency is declared on the ground of war and external aggression. आना चाहिए था यहाँ पे, armed rebellion के नाम पे आप नहीं कर सकते. When a proclamation of national emergency is made, the 6 rights under Article 19 are automatically suspended. True. When the national emergency ceases to operate, President has to issue an order for restoring the suspended fundamental. नहीं, automatically अपने आप लग जाते हैं दोबारा से. Special proclamation नहीं चाहिए. Remedy for anything done during the emergency lies, unlike in the case of Article 359 where there will not be any remedy. तो नहीं, ऐसा नहीं है. There will be remedy, लेकिन executive action के खिलाफ नहीं होगी. अगर law बना के आपने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ होगी under Article 13. These questions we have done yesterday. So today we are starting the understanding regarding part 21 of Indian Constitution, which provides special status or special provisions for some of the states in India. जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, so we have number of states and mostly the northeastern states which have been provided the special status under various articles of Indian Constitution, and we have various sub clauses also. So the exact article which we have, which provides special status, it is Article 371, starting from 371A to J. So one by one we'll cover all these. So it is mentioned that Constitution provides special status with special majority. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया जाता था पहले एनडीसी के द्वारा, एंड एनडीसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अगर मुझे कोई बताए तो बताइए कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी? एग्जीक्यूटिव बॉडी. Yes. So we have in the National Development Council, which is an executive body, and currently we have also this, but it is in the non-functional stage, and all the responsibility are being considered by the NITI Aayog. Why we have seen that the National Development Council is not being used functionally? The reason being the various finance commission like YV Reddy sir, all have mentioned that these two bodies in the planning stage, one we have the planning commission earlier and the NDC. It used to create the dichotomy and conflict of interest between both the bodies. Why so? Because the responsibility and the mandate of the planning commission is to create a plan. Then this plan will go to the NDC, where there will be the prime minister and other ministers also. Then this plan will go to the parliament for the study, and then it will become an act. So it was creating some sort of delay in the formulation of plans, acts, and bills, and that is why we have only one agency which is currently functional, that is the NITI Aayog, on the policy formulation, on the policy analysis, which provides the recommendation which are non-binding to the central government, and then those recommendations are incorporated into various laws and bills
duly discussed by the parliament via their standing committee, ad hoc and permanent committee. तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बात की कि जम्मू कश्मीर was a state which was given the special status under Article 370, which now has been revoked along with Article 350A. तो दोनों आर्टिकल जो है अगर हम ब्रीफ में बात करें तो they were providing special status in the terms of separate flag of Jammu Kashmir, separate constitution of Jammu Kashmir, prohibition over central law, central direction, central command in the state of Jammu and Kashmir, which were creating some sort of non-uniformity and resultant the law and order issue, along with the imbalance and we can say that unequal development in one part of country and the other rest part of the country. This was the reason because of which the politicization of the young masses of Jammu and Kashmir happened, because of which we saw that cross-border infiltration is one of the challenge. Then drug trafficking is one of the challenge. Then extremism and various forms of law and order issues we have seen in the past couple of decades in the state of Jammu and Kashmir. Apart from these two articles were providing that the people of Jammu and Kashmir can go to anywhere in India. They can buy land in any part of India. But the vice versa situations were not there. What does it mean? It simply means that if a person from Delhi wants to go to Jammu and Kashmir, then he can buy land, he can do marriage, but he can buy the land in the form of lease, and that lease time period was 100 years. So you can only take the property, you can do your commercial business, whatever you want to do there, but that was subjected to the lease provision. And the domicile provisions of the Jammu and Kashmir state were very rigid as compared to the rest of the India. So to avoid such kind of administrative inequality and for incorporating the law and order situation and to provide the equitable level of development in Jammu and Kashmir, the government of India, by an executive action, revoked the Article 370 and Article 358A, which provided such kind of discriminatory principles in the name of special category status. Because the constitutional experts also in the premises of the Supreme Court argued that the provisions of Article 370 and 358A, 355A were of having temporary nature. So the government of India has not done a sin to revoke them. And as far as the situation is concerned, now and earlier, the situation is much better in terms of capacity development, infrastructure creation, more FDI and FII coming in the state, regional connectivity is becoming more upper, and cross-sectional development is being taken place when we say that people-to-people contact, commercial expertise, infrastructure creation, then critical infrastructure development. So now we have the two UTs in the Jammu and Kashmir erstwhile state, that is the UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, Leh and Ladakh. Leh and Ladakh we have only the UT with LG, and in the other hand, in the Jammu and Kashmir we have the UT with the legislative provision where there will be a assembly, and assembly will be having the provisions of parliamentary government in the form of CM headed by Council of Ministers headed by the CM. तो स्पेशल स्टेटस जो है वो क्या क्या डील करने के लिए दिए जाते हैं, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट अलग अलग स्टेट के हैं. तो अगर हम ब्रीफ में चलें तो पार्ट 21 के अंदर सबसे पहला जो मेंशन किया गया है दैट इज आर्टिकल 371. So now what 371 says, 371 is related to two prominent states of India, that is Maharashtra and Gujarat. तो 371 के अंदर क्या ऐसा बोला गया है जिसको स्पेशल बनाता है? पहला, वहां के जो गवर्नर होंगे उनकी एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. क्या?
कि वो डेवलपमेंट बोर्ड अलग से बना सकते हैं। किस चीज के ऊपर? कुछ ऐसे रीजन्स जिनको स्पेशल स्टेटस के अंडर लेना जरूरी है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठवाड़ा, विदर्भ, और गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र एंड कच्छ। हर गवर्नर को, जो महाराष्ट्र है उसको मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के लिए स्पेशल स्टेटस ध्यान रखना है। उसके अंदर जो भी कानून लगेंगे पार्लियामेंट के, उन पर मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं। और ऐसा ही केस सेम केस गवर्नर ऑफ गुजरात करेंगे इन द केस ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। इसके अलावा जब ये बोर्ड बनाए आपने इन एरिया के अंदर एज ए गवर्नर, तो इनकी रिपोर्ट आपके पास आएगी। आप इनकी रिपोर्ट स्टेट असेंबली के अंदर पेश करेंगे ताकि इस पर डिस्कस हो, पता लग सके कि कितने टाइम तक और इन्हें स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है। इसके अलावा इस बोर्ड को आप अलग से पैसा भी देंगे आउट ऑफ द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, ताकि ये डेवलपमेंट काम अच्छे से कर सके। इसके अलावा कुछ आप ऐसी फैसिलिटीज देंगे, जैसे कि आप वोकेशनल एजुकेशन दे दीजिए, आप स्कूल्स कॉलेज खुलवा दीजिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहीं पर रिजर्व कर दीजिए कि यहाँ के लोगों के लिए, यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसा आप कर सकते हैं। दीज आर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो कि आर्टिकल 16 को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ फंडामेंटल राइट्स टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इन्हीं स्पेशल एक्सेप्शन के नाम। तो दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 371A। अब ए से आप डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट चले जाइए और जाइए और रुकिए कहां पर? नागालैंड में। तो नागालैंड के अंदर स्पेशल स्टेटस किस तरीके का है? पहला, पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी वो हिसाब से होना चाहिए किन चीजों को? पहला, जो नागा कम्युनिटी है नागालैंड में, जिनकी मेजोरिटी है, उनके जो रिलीजियस और सोशल कस्टम है उनके हिसाब से होना चाहिए कानून। इसके अलावा जो उनके अपने कस्टमरी लॉ है, जिनको नेचुरल लॉ भी कहते हैं, उनके हिसाब से होना चाहिए। और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन नागा लोग चाहते हैं उसी के हिसाब से जो है आपका पार्लियामेंट्री लॉ वहां पर इंप्लीमेंट होगा। जब हम बात करते हैं ग्राम सभा की, तो नागा कम्युनिटी की जो ग्राम सभा है वो बताएंगे कि ट्रांसफर कैसे होना लैंड का। आप सेंट्रल लॉ के बिहाफ पर नहीं कर सकते। इसके बाद जो वहाँ के गवर्नर है उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नागालैंड में? हम देखते हैं आसपा रीजन भी इसके अंदर आता है, मिलिट्री भेजी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, तो वहां पर एक्सपा भी है। तो गवर्नर ऑफ नागालैंड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की उनकी जिम्मेदारी है, सीएम की नहीं है। वहां पर 90% जिम्मेदारी गवर्नर की। R N Ravi, तमिलनाडु गवर्नर, इसीलिए उनको ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है। ही वाज द एक्स गवर्नर ऑफ द नागालैंड। इसके अलावा गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके एक्शन लेंगे, लेकिन डिसीजन उन्हीं का फाइनल होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट उनसे किसी भी टाइम छीन सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, किसी भी तरीके से फंड के रूप में देती है, ग्रांट के रूप में देती है, वो गवर्नर देंगे स्टेट असेंबली के। इसके अलावा जो गवर्नर है वो एक रीजनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करवाएंगे। कौन से एरिया में? नागालैंड के चुनसांग डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट चुनसांग डिस्ट्रिक्ट में आप एक 35 मेंबर की रीजनल काउंसिल बनवाइए। गवर्नर साहब आप ही उसके रूल बनाइए, कितने लोग होंगे, कंपोजिशन आप बताएं, चूज कैसे होंगे वो बताएं, क्वालिफिकेशन, सैलरी, अलाउंस, प्रोसीजर, सब कुछ आप बताएंगे। इसके अलावा फॉर 10 ईयर्स जो गवर्नर है उस रीजनल काउंसिल से बहुत सारी चीजें एज ए कंसल्टेशन लेंगे। क्या? कि स्यून्स एंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, तो वो गवर्नर करेंगे लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पर करेंगे। इसके बाद जो नागालैंड और स्यून्स डिस्ट्रिक्ट के बीच में पैसे का एलोकेशन होना है वो कैसे होगा, वो गवर्नर देखेंगे। कोई नागालैंड की स्टेट असेंबली का ही अगर लो है तो स्यून्स डिस्ट्रिक्ट में कैसे अप्लाई होना है वो गवर्नर देखेंगे। उनकी रिकमेंडेशन और रीजनल काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना लग ही नहीं सकता वहां पर कानून। गवर्नर जो है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं रेगुलेशन फॉर द पीस, गुड गवर्नेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, ऐसे गवर्नर करेंगे कहां पर? नागालैंड के अंदर और चुनसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और वो चुनसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक इंसान को उठा लेंगे एज अ स्टेट असेंबली का मेंबर, जिसको वो मिनिस्टर बना देंगे चुनसन एरिया का। और उसके ऊपर जितनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर के फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उस मिनिस्टर की होगी। फाइनल डिसीजन किसी भी चीज के ऊपर नागालैंड में गवर्नर का होगा। और रीजनल काउंसिल के अंदर ट्यूनसेंग एरिया से इनडायरेक्ट इलेक्शन के बिहाफ पर कंपोजिशन होगी। So this Article 371A
is providing such kind of various exceptions in the form of special category to Nagaland, we have seen. तो यहाँ पर कुछ देखते हैं बिफोर वी जंप ऑन द सेकंड स्टेट. नॉट सो स्पेशल एनीमोर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो टैक्स डेवोल्यूशन जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वो कभी 32 रहता है, कभी 42 रहता है. आज के टाइम पे अगर बात करें 41 है, 1% इज एडिशनल, आई थिंक फॉर द जम्मू एंड कश्मीर. इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फॉर्मूला है जिसका नाम है गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला. तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप 30% टोटल सेंट्रल असिस्टेंस दो स्टेट को, जिसमें कि 90% एज ग्रांट. यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको असिस्टेंस देनी है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी. तो जितना भी डेवलपमेंट काम है उसके लिए आप दे दीजिए. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है 1969 के अंदर आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन. तो ऐसा ये 5th फाइनेंस कमीशन का और जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग है. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, एंड दिस थिंग व्हिच इज रिटन ऑन द स्क्रीन, इट इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज दिस इज टॉकिंग as to how the financial resources will be given as a special category status under the 5th फाइनेंस कमीशन. तो इसमें बोला गया क्या क्या, जो आज के हमारे 15th फाइनेंस कमीशन उसमें बोला जाता है कि किसी स्टेट के अंदर ज्यादा जंगल है तो उसको ज्यादा पैसा दो क्योंकि डेवलपमेंट इसमें नहीं हो सकती है. इसके बाद किसी स्टेट के अंदर हिली रीजन ज्यादा है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाल सकते, उसको ज्यादा दो क्योंकि वो पैसा कहाँ से कमाए. तो ये सारे तो फीचर्स हैं. नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 371B. तो नागालैंड से जैसे ही आप वेस्टर्न साइड में आते हैं तो हमें असम के अंदर रुकना पड़ेगा. असम के अंदर लगता है आर्टिकल 371B. ये सिर्फ बहुत छोटी सी बातें कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो असम की स्टेट असेंबली के अंदर मेंबर को इलेक्ट करेंगे ट्राइबल एरिया. दैट्स ऑल. दिस इज आर्टिकल 371B रिगार्डिंग असम. देन वी गो टू मणिपुर. सी, आर्टिकल 371C. यहाँ पर बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द असेंबली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो हिली एरियाज को रिप्रेजेंट करेंगे. प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेंगे कि आपकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि जो मैंने कमेटी बनाई उसका संरक्षण करें, उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से करें, उसकी कॉम्पोजिशन पर ध्यान रखें, उसकी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करें. और गवर्नर को प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप एनुअल रिपोर्ट मुझे सबमिट भी करो कि हिल एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है. इससे पता लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप रिमोट टू रिमोट गवर्नेंस की बात करते हैं. जब आप हिल एरियाज को भी हिल नहीं मानते हैं, आप उसको मेन स्ट्रीम इंडिया का पार्ट मानते हैं. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं कि जो नॉमिनल हेड है, तो वो नॉमिनल हेड सिर्फ दिखने के लिए, उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कहीं ना कहीं पूरा इंडिया हमें देखने को मिलता है. और सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आपके हिसाब से नहीं चल रहा है अच्छा, हम जैसा बता रहे हैं आप चलाइए. तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं. नाउ वी हैव कवर्ड आर्टिकल 371, दैट इज महाराष्ट्र गुजरात, ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर. नाउ वी कम ऑन द डी, दैट इज आंध्र प्रदेश, एंड ई, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. So earlier we had the same state Andhra and Telangana as was one. लेकिन 2014 post we have seen the two states, that is Andhra and Telangana, as a separate state. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 371D and E, प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं इन दोनों स्टेट के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए. जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 जिसके अंदर एक्सेप्शन है, तो आंध्रा और तेलंगाना के अंदर है. यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं कि सिर्फ आंध्रा के लोग ही इस फलाना फलाना एम्प्लॉयमेंट सर्विस के अंदर आएंगे. प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं. इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप लोकल कैडर बना दीजिए अपने स्टेट के अंदर, सिविल पोस्ट में, मिलिट्री में नहीं, सिविल पोस्ट, और वहां पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा लीजिए जिस तरीके से आपको करानी है. इसके बाद आप लोकल एरिया के लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनवा दीजिए जहां पर आपको लगता है ज्यादा गरीबी है और स्पेशल कैटेगरी देने की जरूरत है. और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा दीजिए जिसके अंदर कोई और पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस एरिया की जनता को ही पढ़ाया जाएगा, उस एरिया की जनता को ही रिप्रेजेंटेशन होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर. इसके बाद प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि आप जो स्टेट के अंदर
सिविल पोस्ट पे काम करने वाले ये जो लोग होंगे इनके ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होंगे, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे तो हमारे यहाँ कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लेकिन इनके लिए आप एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं जो इनकी ग्रीवियंसेस को क्या क्या प्रमोशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कैडर का अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे फंक्शन करेगी, और स्टेट हाई कोर्ट के बाहर होगी। देखिए कि स्टेट हाई कोर्ट के परव्यू में ही नहीं आएगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन लगा सकती है, अदरवाइज इसके ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं लगा सकती। और प्रेसिडेंट जब चाहे जब इस ट्रिब्यूनल को अबोलिश भी कर सकते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। 371E के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आई डाउट कि ऐसा बनाया गया है अभी तक, बट यस पार्लियामेंट हैज अ पावर टू क्रिएट एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कि एक ही बनेगी, एग्रीकल्चर हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, लीगल हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, कितनी भी बना सकती है। देन वी हैव आफ्टर ई एक्ट दैट रिलेट्स टू सिक्किम। तो हम देखते हैं कि जो सिक्किम है 1975 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट होता है जिसको 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके तहत इंडिया का इनकॉर्पोरेट पार्ट माना जाता है सिक्किम को। आर्टिकल 371F रिलेट करता है। ये क्या कहता है, स्टेट की असेंबली 30 लोगों से ज्यादा हो सकती है, 30 लोगों से कम नहीं होगी। एक एमपी की सीट लोकसभा से आएगी पार्लियामेंट के अंदर, स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो बता देगी कि असेंबली के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाए या फिर कुछ स्पेशल सेक्शन के लोगों से भरी जाए। डिलिमिटेशन पार्लियामेंट करवाएगी। गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस बना रहे, सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो हिली एरियाज और प्लेन एरियाज में। गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर काम करेंगे, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने डिस्क्रिप्शनरी पावर दे दी तो उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो है सिक्किम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लॉ मॉडिफाई करके अपनी मर्जी से लगा सकते। इसके बाद है आर्टिकल 371G। 371G दोबारा नोट ईस्ट तो मिजोरम। मिजोरम के अंदर क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट हैं स्टेट के अंदर तब तक नहीं लगेंगे जब तक स्टेट असेंबली ये डिसाइड ना कर ले कि वो मीजो कम्युनिटी के हिसाब से है। मीजो कम्युनिटी का हिसाब बोले तो रिलीजियस कस्टम लॉ। पार्लियामेंट का जितना भी लॉ है वो मीजो कम्युनिटी के लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत तो नहीं लाएगा, सिविल क्रिमिनल जस्टिस जो उनको मिल रहा है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और ट्रांसफर ऑफ लैंड जैसे मीजो कम्युनिटी की ग्राम सभा चाहती है वैसे हो। मिजोरम की असेंबली 40 से नीचे नहीं हो सकती, 40 से ऊपर हो, यानी मिजोरम में 40, सिक्किम में 30। अब बात करते हैं 371H। ये बात करता है अरुणाचल। अरुणाचल के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके काम करो, लेकिन अपना इंडिविजुअल जजमेंट भी दे सकते हो और वो फाइनल होगा। इसके अलावा असेंबली की बात करें तो सिक्किम की तरह यहाँ पर भी 30, मिनिमम रिक्वायर 30। देन वी हैव गोवा। गोवा के अंदर 371I, यहाँ पर भी बोला जाता है 30। तो अगर ब्रीफ करें इस चीज को तो सिर्फ एक मिजोरम हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर मिनिमम 40 है, लेकिन बाकी के स्टेट जो भी हैं जैसे कि हम बात करें सिक्किम की, अरुणाचल की, गोवा की, तो हर में मिनिमम 30 होनी चाहिए। एंड द लास्ट आर्टिकल वी हैव इज आर्टिकल 371J। ये रिलेट है कर्नाटक। इसमें क्या बोला जाता है कि दो स्टेटों के बीच में आपस में लड़ाई रहती है टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर। किन के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के लिए। इसके बाद ये जो बोर्ड बनेगा हर साल स्टेट असेंबली को अपनी रिपोर्ट देगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए बराबर का फंड पैसा इनको अलोकेट होगा स्पेशल रीजन के अंदर। एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब के लिए स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी इस एरिया के बच्चों को। रिजर्वेशन होगी इस एरिया के बच्चों को सरकारी जॉब के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल मेजर भी ले सकती है ताकि इस एरिया के जो यूथ है, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, उनका सोशो इकोनॉमिक गवर्नेंस अच्छे से हो। So this whole article is talking about and the chapter is talking about जिसमें हमने वन बाय वन we have covered। गडगिल फॉर्मूला हमने देखा कि 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर ऐसा बोला जाता है 42% आप रिकमेंडेशन दो, लेकिन अभी 41 दिया जाता है, 1% इज लेफ्ट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। 371A हमने देखा, 371 गुजरात महाराष्ट्र, ए नागालैंड। जम्मू कश्मीर हमने देख ही लिया है। तो बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्रा, ई तेलंगाना।
sorry, D and E both were for Andhra and Telangana, but now E for Andhra, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाए, and D for Andhra and Telangana, as Sikkim, G Mizoram, as Arunachal, I Goa and J Karnataka. So we have some questions here. States frequently demand special category status, seeking unique fiscal and development consideration from central government. In the light of the recent demand by Bihar cabinet, mention the reasons for such demand and highlight the concerns related to the special category status. So इसमें I don't know what Bihar cabinet is asking, but I can say that बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, बाकी जो नियर बाय स्टेट्स है उनके मुकाबले कम है। जब हम बात करते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनइवन डेवलपमेंट, बिहार के अंदर ज्यादा है। जब हम बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन, वो बिहार के अंदर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट के अंदर ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर अमीर लोग नहीं है। बिहार इज अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, बिहार इज अ रिच प्लेस फॉर टूरिज्म, but despite that we have seen that large scale poverty exists and socio-economic challenges we have in the state of Bihar. So ऐसा क्यों है? As far as my knowledge is concerned, we have the political nexus, large scale criminalization. इसके बाद we have literacy, illiteracy in the state. Then the critical infrastructure availability is not even. In major cities, in metropolitans only we have. Then there is no concept of smart city. There is no concept of smart village. But despite that, we are seeing that Bihar is competing with the other states. जब हम बात करते हैं नीति आयोग के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, इसके बाद टूरिज्म सर्किट की, इसके बाद मिनरल्स एक्विजिशन या फिर जो इलीगल क्राइम्स हैं जिसमें हम बात करते हैं मिनिंग हो गया, सैंड माफिया हो गया, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस की। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही। लेकिन इस तरीके से स्पेशल स्टेटस मांगना क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वायबल है? तो द आंसर इज नो। व्हाई सो? बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली the special status is mentioned for some of the states, and in those states also in some of the areas like Chunsang district में होगा, law and order के लिए होगा, temporary nature के लिए। If we will allow the Bihar to have the similar kind of thing, it will increase the demand from other states also. Example, Delhi will also say that we don't want to live within the control of central government. एक दीवार खींचो, हमें भी अलग कर दो, हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। So what we require for this is the capacity development, financial devolution हो फंड का, रिसोर्सेज हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है पर्सोनल्स का वो अच्छे से हो, और इवन डेवलपमेंट हो, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग जो स्कीम्स हैं विदाउट करप्शन उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों की अच्छी पॉलिटिकल विल हो, जिससे कोऑपरेटिव स्पिरिट के अंदर वो अपने एरियाज के अंदर काम कर पाए और बिहार की जो रीजनल स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। So next we will cover tomorrow. So thank you so much and keep watching Answer Sari.